Good morning, students, and welcome once again in the Sivaji Group of Institutions online class. Students, in my earlier video, I solved the LPP problem, linear programming problem by graphical method. Now, today I am going to discuss some different types of linear programming problems. There are some different language problems in the chapter LPP. So, first type is type problems. In this type of problems, students, we have to find the amount of different type of constituents or nutrients which should be included in a diet. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जो है different type of kinds of nutrients और constituents जो दिए होते हैं in a diet, उनको so as to minimize the cost of the desired diet और उस diet का जो cost हो वो minimize हो such that it contains a certain minimum amount of each constituent or nutrient और इस प्रकार हो कि वो कंटेन करता हो minimum amount of each constituent or nutrients जिससे कि minimum amount of nutrients मिलता हो और उसको minimize cost में मिलता हो। इस टाइप की प्रॉब्लम हमको इस टाइप प्रॉब्लम पढ़नी है स्टूडेंट्स। एंड सेकंड टाइप ऑफ language problem is optimal product line problems. Students, in this problem, this type of problem, we have to determine the number of different products which should be produced and sold by any factory or firm. When each product requires a fixed manpower, जबकि हर जो प्रोडक्ट है वो एक फिक्स्ड मैनपावर रिक्वायर करता है, फिक्स मशीन आवर्स रिक्वायर करता है और लेबर आवर्स रिक्वायर करता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वेयरहाउस स्पेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट etc. in order to make maximum profit. So maximum profit हमको लाने के लिए जो भी हमारे पास इस टाइप से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स में। इसमें प्रोडक्ट को सोल्ड करना और हमारे पास है जो प्रोड्यूस करना होता है इस तरह से कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। एंड स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स we have to solve the different commodities, that's like for supply and chain from एक स्थान से दूसरे स्थान पे one point to other point में कितना ट्रांसपोर्टेशन में जो लगता है इस टाइप के प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। सप्लाई एंड डिमांड में कितनी सप्लाई हो रही है कितनी डिमांड हो रही है इस हिसाब से हम लोग इस टाइप there are some language problems in LPP, type problems, optimal product line problems and transportation problems. अब उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? So how we will solve the problems based on language problem based on LPP. So see the next problem. So students, here are some problems based on type problem of LPP. So students, I already told you that there is some language problems in the chapter LPP, linear programming problem. There are three types of language problems, students, in there. First type is diet problem, students. In the diet problem, we should take some mixture or some substance as it is the cost will be minimum. कॉस्ट मिनिमम हो हमारे पास स्टूडेंट्स और हमको बेनिफिट हो तो ऐसे इसमें कॉस्ट मिनिमम कितना मिनिमम हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट लागत कितनी मिनिमम आए तो इसको हम लोग डाइट प्रॉब्लम में करते हैं कि हम लोग डाइट कैसे अपना मेंटेन करें कि जिसमें कि मिनिमम कॉस्ट में हमारा डाइट एक्चुअल में कॉस्ट मिनिमम आए। सो स्टूडेंट्स, डाइट प्रॉब्लम में इस टाइप के प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज दैट सम ऑप्टिमल वैल्यू प्रॉब्लम। इन दैट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स there are some सेल एंड प्रोडक्ट का जो हमारे पास प्रोडक्शन होगा और उसके सेल्स के बारे में हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो ऑप्टिमल वैल्यू प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स इसको फाइंड करते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हम लोग उसमें कितना आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉब्लम उसमें बच्चों इंक्लूड होंगी। सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज diet problem students. The first problem is Resma wishes to mix two type of food, capital P and capital Q, such a way that in vitamin contents of the mixture की mixture में vitamin contains at least 8 units of vitamin A
उस मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए के हैं एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और उस मिक्सचर में कंटेन हो रहा है 11 यूनिट्स, एटलीस्ट 11 यूनिट्स। 11 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकते हैं, बात अलग है, पर एटलीस्ट 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। फूड पी की जो कॉस्ट है वो 80 पर केजी है और फूड क्यू की कॉस्ट है वो ₹80 पर केजी है। सो फूड पी के अब स्टूडेंट्स फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। पर केजी के 3 यूनिट्स के रेट से विटामिन ए है फूड पी में और 5 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से विटामिन बी है फूड पी में। While food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. So students, determine the minimum cost of the mixture. So minimum cost, students, minimum cost. See these two terms, minimum cost and there is at least. So this is the very basic. इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको रिकॉग्नाइज करके हमको इसका मैथमेटिकल फॉर्म बना के फिर इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर लेट रेशमा मिक्सेस x kg of food feed and y kg of food q। तो रेशमा जो है x kg of food p and y kg of food q in the mixture। Now students, तो इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, here are some table. Here students, now students, here are food below and here are vitamin. So food P students and food Q. So food P, this is vitamin A and this is vitamin B. So here students, food P contains 3 units per kg of vitamin A. तो विटामिन A की 3 यूनिट्स पर केजी है स्टूडेंट्स एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन B। तो यहाँ पर 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन B है स्टूडेंट्स एंड फूड Q कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन A। तो विटामिन A की 4 यूनिट्स है स्टूडेंट्स एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन B। तो विटामिन B की 2 यूनिट्स पर केजी है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द table of food and vitamin students. Now from this table we formulate the mathematical. So the mathematical formulation of given LPP is minimum z, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है कि मिनिमम कॉस्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्य क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस मिनिमम कॉस्ट। सो मिनिमम z व्हाट इज z? दैट इज 60 रुपीस पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। सो स्टूडेंट्स अब कितने केजी है यहाँ पर? x केजी है और इसको जो है कॉस्ट हो रही है कितना? 60 पर केजी। तो यहाँ पर हो जाएगा 60x प्लस 80y, बिकॉज फूड क्यू हमारे पास y है, y केजी फूड है, तो यहाँ पर 80y हो जाएगा। तो दिस इज मिनिमम z स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे? कंडीशन क्या हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रेंट्स आर दैट
देयर इज मिक्सचर में कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की 8 यूनिट्स है, तो दिस इज एटलीस्ट मिला हुआ है। तो विटामिन ए कितना है? पी पी में 3 यूनिट्स पर केजी है। कितने केजी विटामिन है? x केजी फूड पी है, और उसमें विटामिन ए कितना है स्टूडेंट्स? 3 यूनिट्स पर केजी। तो x के से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3x इन फूड पी। और विटामिन ए फूड क्यू में कितना है? 4 यूनिट्स। अब फूड क्यू में कितना हमारे पास जो है y केजी ऑफ फूड क्यू। तो देयर इज 4y। विटामिन ए को देख रहे हैं, और विटामिन ए एटलीस्ट है कितना? कम से कम 8 यूनिट्स। एटलीस्ट लगा हुआ स्टूडेंट्स, तो यहां पर ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एटलीस्ट मींस कम से कम 8 तो होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। दिस इज द फर्स्ट linear inequality based on this problem. Now students, again विटामिन बी, तो विटामिन बी कंडीशन लिया, ये विटामिन ए कंडीशन है, विटामिन ए कंडीशन constraints, and this is vitamin B. vitamin B students कितना है? 5x। 5 यूनिट्स है फूड पी में, और फूड पी कितने हैं? x के जी, तो 5x। एंड 2 यूनिट्स है फूड क्यू में, सो स्टूडेंट्स फूड क्यू कितना है? y यूनिट्स, सो 2y। और स्टूडेंट्स विटामिन बी जो है वो एटलीस्ट कितने यूनिट्स है? 11 यूनिट्स। तो यहां से आप देख करके इसको बना सकते हैं। देन विटामिन, दिस इज विटामिन बी कंडीशन, विटामिन बी कंडीशन। And students, non-negative restrictions are x is greater than 0 and y is greater than 0. So this is the mathematical formulation of this diet problem. तो इसको हमने डाइट प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कर लिया, पीपी के फॉर्म में ले आए। अब इसको हम प्रीवियसली ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करके अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। So now students, now the question will be so become in form of so easy. So अब now students हम इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपका कंडीशंस है। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्विंग द एलपीपी, नाउ फॉर फर्स्ट कंडीशन, that is 3x plus 4y is greater than 8। इक्वेशन फॉर्म, इसको इक्वेशन फॉर्म में तो स्टेप जैसे आप लोगों को पहले प्रीवियस में बताया गया है ग्राफिकल मेथड में, सेम वैसे ही करना। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एंड दिस इज 3x plus 4y is equal to 8। नाउ स्टूडेंट इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेंगे। आपको पता चले x एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये लाइन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री है, लीनियर है, तो लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होता है। नाउ स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर देंगे इसको, 3x/8 plus 4y/8 is equal to 1। दिस गिव्स x 8/3 is equal to y plus y/2 is equal to 1। So students, this line cuts x-axis at 8/3, 0 and y-axis 2, 0। यहां से y इंटरसेप्ट 2 है, तो y एक्सिस पे कट करेगा, और ये x एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास ये लाइन पास होगी। अब स्टूडेंट्स हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। So students, see the solution of given LPP. So now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, as it is. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5, and so on. So students, 8/3, 0. So where 8/3 means something less than 3. So this is the 8/3 point. This is the 8/3, 0. 8/3, 0. This is the point. And 2, 0, 2 is this. This is 0, 2. So the
this line passes this point. So this is the first line. Now students origin test कर लेंगे इसका. Origin visible region में कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है? So origin test. Put 0, 0 in given inequality. तो given inequality में 0, 0 यहाँ पर रखेंगे. So students 0 plus 0 is greater than 8. So 0 is greater than 8, which is not true. Which is not true. So students, origin is not in feasible region. तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास ओरिजिन जो है फिजिकल रीजन में नहीं होगा. तो स्टूडेंट इसका मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ इसका फिजिकल रीजन होगा अपवर्ड डायरेक्शन इस साइड. इसका फिजिकल रीजन लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ओरिजिन से दूर की तरफ. नाउ स्टूडेंट्स सेकंड इनइक्वालिटी, फॉर सेकंड इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड इनइक्वालिटी इज दैट 5x plus 2y is greater than 11. So इक्वेशन फॉर्म में इसको स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे सेम एज इट इज. So 5x upon 11 plus 2y upon 11 is equal to 1. That is x upon 11 upon 5 plus y upon 11 upon 2 is equal to 1. Now students, so this line cuts x-axis at 11 upon 5 because at x-intercept this है तो 11 upon 5 comma 0 and y-axis at 0 comma 11 upon 2. So students, draw this line. ग्राफ पेपर पे जो ड्रा करेंगे तो 11 upon 5 means students x की वैल्यू x एक्सिस पे 11 upon 5 इंटरसेप्ट कर रहा है. दिस मींस 2 point something, 2.2 students. So 2 points here is. So this is the students 11 upon 2 comma 0, 11 upon 5 comma 0. Now students on y axis there is 0 comma 11 by 2 means 5.5. So 5.5 means students ये students ये लाइन ऐसे है. So this point is 0 comma 11 by 2. Now students लिमिट कर देंगे. This is O, this is A, this is B. एंड origin test स्टूडेंट्स करेंगे इसका. So origin test put 0 comma 0 in 3x 5x plus 2y is greater than 11. Then 0 plus 0 is greater than 11. 0 is greater than 11, which is not true. Which is not true. So students, origin not in feasible region. तो feasible region किधर होगा? इस लाइन के भी upward direction में students this is. So students, and now third is x is greater than 0, y is greater than 0. So x greater than 0, y greater than 0 means ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बच्चों सेटिस्फाई करेगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिजिकल रीजन हमारे पास ये इसके भी कॉमन फिजिकल रीजन. सो फिजिकल रीजन इज कॉमन रीजन satisfies all the conditions, all the restrictions and all the conditions. तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल रीजन हो गया. तो फिजिकल रीजन स्टूडेंट्स कौन सा हो गया? इसमें इसके अपवर्ड एंड इसके अपवर्ड, तो सबसे बाहर वाला कॉमन रीजन आएगा इसके अपवर्ड. दिस इज द फिजिकल रीजन एंड दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. दिस इज टेकन एज P, this is taken as Q and this is taken as R. So this is the PQR. So feasible region is most outside
in figure. Standard रीजन. तो स्टूडेंट्स जो हमारा फिजिकल रीजन होगा वो एक सबसे बाहर की तरफ वाला जो कॉमन पार्ट होगा तो यही आएगा. इसके कॉर्नर पॉइंट P, Q और R हो गए स्टूडेंट्स. सो कॉमन पार्ट. So students, the common points of visible region are P, Q and R. Now students, P points हमको मालूम है 0,11/2 and R point 8/3,0 है, but we not know this point. So ये point हमको clear नहीं है students. Q points. So find first Q point. This is 3x plus 4y students. This is line 3x plus 4y is equal to 8. This is line 5x plus 2y is equal to 11. Now students, for finding point Q, that is intersection of two given lines, intersection of two given lines, 3x plus 4y is equal to 8 and 5x plus 2y is equal to 11. So student इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, then we get 10x plus 4y equal to 22. Now students subtract कर देंगे this and this, subtract कर देंगे students, minus minus minus, this will cancel out. 3 by minus 7x is equal to 8 minus 14, which is minus 14. So x equal to 2 students. So students, ये x equal to 2, I put the value of x here. There is 6, minus 8 minus 6, that is 2. So 4y is equal to 2, so y is equal to 1/2. So point Q is equal to, आ गया students हमारे पास कितना, x की वैल्यू है 2, 1/2. So this point is 2, 1/2. So students, the corner points are find the corner points, this and this. So students, now corner points. So corner points and z is equal to 60x plus 80y. Now students, corner point students P 0 11/2, Q 2 1/2 and R that is 8/3, that is 8/3, Now students, ये हमारे पास इसका कॉमन रीजन हो गया स्टूडेंट्स. अब इस पॉइंट पर लेवल में करेंगे, so z is equal to, what is z? So z equal to 60 into 0 plus 80 into 11/2, that is z is equal to 440. Here is z is equal to, put x equal to 2, so 120 plus 1/2 here, so 80 into 1/2, so it's equal to 160. Now students, put this point R, put 8/3, 0, so here put 8/3, so 60 into 8/3 plus 80 into 0, that is, this is 320, 28 is 160. So students, minimum, अब minimum students किस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पर भी minimum पुट हो रहा है, यहाँ पर भी minimum पुट हो रहा है. तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स पर मिनिमम कॉस्ट आ रही है, x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1/2 हो, तो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 8/3 हो, y की वैल्यू 0 हो स्टूडेंट्स. So students, minimum cost is, this is minimum and also this is minimum because this is equal. So students, minimum cost z is equal to 160 at all points lying between this and this.
इस और इस पॉइंट के बीच जितने पॉइंट्स आएंगे उसका जो मिनिमम होगी वो 160 आएगी एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन 8/3, 0 एंड 2,1/2। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर ये मिनिमम कॉस्ट होगी। सो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स अब x के जी हमने वहां पे लिया था, तो स्टूडेंट्स x के जी x की वैल्यू ये पुट कर देंगे और ये पुट कर देंगे और y की वैल्यू अगर दूसरा पॉइंट, तो सभी पॉइंटों पर ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आएगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। स्टूडेंट्स now students here are one more problems students for you. The second problem based on diet. So students, there are two types of fertilizers, F1 and F2. F1 consists of 10% of nitrogen and 6% of phosphoric acid, and F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil condition, students, a farmer finds that he needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphorus for his crop. If F1 cost rupees 6 per kg and F2 cost rupees 5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used for to that nutrient requirements meet a minimum cost. Find the minimum cost. So students, हमारे पास एक फार्मर ने जो है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, F1 एंड F2। F1 में 10% हमारे पास नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक एसिड है, और F2 फर्टिलाइजर में कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% फास्फोरिक एसिड। So after testing the soil condition, तो soil condition, a farmer find that he needs at least 14 kg of, तो नाइट्रोजन जो है वो कम से कम 14 kg चाहिए और फास्फोरिक एसिड भी कम से कम उसको 14 kg चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमको ये, अब इसके लिए सबसे पहले नेट फार्मर should take x kg of fertilizer F1 and y kg of fertilizer F2। So students, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एलपीपी इसका बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा यहां से, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि हमारे पास 6 पर केजी, कितने केजी फर्टिलाइजर F1 है x, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा 6x प्लस एंड F2 कॉस्ट रुपीस, कॉस्ट जो फंक्शन होता है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन हमारे पास तो 5 पर केजी ऑफ F2, तो F2 कितने हैं y केजी है तो प्लस 5 है। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, इसी को आप लोग कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं। दिस इज एंड स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है? तो रिस्ट्रिक्शंस आर कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 5% 10% है इसमें F1 में और 5% है F2 में। तो नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन एटलीस्ट कितना है 14 kg, और टोटल केजी कितने हैं? x नाइट्रोजन है, x केजी F1 के हैं। सो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सबसे पहले नाइट्रोजन की लगाते हैं, तो 10/100, दिस इज 10% ऑफ x प्लस F2 में कितना है स्टूडेंट नाइट्रोजन है? F2 कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 5/10 100 y इज ग्रेटर इक्वल, एटलीस्ट लगा हुआ है तो 14 kg चाहिए स्टूडेंट्स। दिस इज द 40, दिस इज द दैट इज x/10 प्लस y/20 इज ग्रेटर देन 40। दिस इज द इक्वालिटी फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड, व्हाट इज द सेकंड? तो सेकंड स्टूडेंट्स क्या है? ये नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स है, नाइट्रोजन के लिए स्टूडेंट्स है नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट्स। तो नाइट्रोजन, अब स्टूडेंट्स फास्फोरिक एसिड कंस्ट्रेंट, तो हमारे पास F1 में फास्फोरिक एसिड कितना है स्टूडेंट्स? 6% फास्फोरिक एसिड F1 कंसिस्ट, तो फास्फोरिक एसिड कितना है? 6% इन F1। F1 में कितना हमारे पास फूड है x kg, तो 6/100 into x प्लस F2 में कितना फास्फोरिक एसिड है स्टूडेंट्स? 10% ऑफ फास्फोरिक एसिड, सो 10/100
into y, क्योंकि F2 consists y kg. So is greater at least 14 इसका भी चाहिए स्टूडेंट्स. ये हमारे पास हो जाएगा x upon 100 upon 6 means 50 upon 3 plus y upon 10 is greater than 14. This is second. And students, x is greater than 0 and y is greater than 0. So students, this is a mathematical formulation of given language problem based on guide. तो इसको हमने इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एलपीपी के फॉर्म में बना लिया. अब स्टूडेंट्स आप टेबल भी यहाँ पर बना सकते हैं. टेबल यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फर्टिलाइजर्स एंड यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड. तो फर्टिलाइजर कौन से स्टूडेंट्स यूज हुए हैं? एक तो F1 एंड दिस इज F2. F2 में कितना है? F1 कितना नाइट्रोजन है? 5%, 10% नाइट्रोजन, 10 on 100 into x. दैट इज यहाँ पे कितना हो गया? F1 में फास्फोरिक एसिड कितना है? 6%. So 6 into 6 upon 100 into y. Sorry, x. x का करने की जरूरत नहीं है, तो बाद में हो जाएगा. So ये this is the nitrogen. Here students, F2 versus y. This is x. This is x. अब F2 versus y kg. F2 में कितना नाइट्रोजन है? 5%. That is 5 upon 100 into x. And 10%, 10 upon 100 into y. So this is the students आपकी टेबल बन जाएगी इस तरीके से. इससे आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करिए. अब स्टूडेंट्स सिमिलरली एज प्रीवियस प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व. So students draw this and objective function is this. This is the objective function students. This is the objective function. तो स्टूडेंट्स अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे एक एक करके. सो फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी x upon 10 plus y upon 20 greater than 14. इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. इक्वेशन फॉर्म क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स इसकी? x upon 10 plus y upon 20 is equal to 14. 14 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स. This is x upon 140 plus y upon 280 is equal to 1. So students, ये हमारे पास 140 0 पर कट करेंगे x एक्सिस को और y एक्सिस को. So line cuts x axis at 140 0 and 0 280. Origin test. So origin test. तो यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे. So 0 plus 0 is greater than 14. That is 0 is greater than 14, which is not true. Which is not true. So feasible reason. Not contains origin. Not contains origin. तो feasible reason में बच्चों ओरिजिन नहीं होगा. सिमिलरली सेकंड के लिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो हमारे पास लाइन है उसे इनइक्वालिटी. दिस इज सेकंड इनइक्वालिटी. दैट इज x upon 50 upon x upon 50 upon 3 plus y upon 10 is greater than 14. तो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस लाइन cuts x axis at 50 upon 3 0 and 0 10. So 14 से स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स. तो 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? x upon 50 into 14 upon 3 plus y upon 140 is equal to 1. So this is the 900 upon 3. So this line cuts x axis
at 700 upon 3 comma 0 and y axis at 0 comma 140. So origin test, origin is not in feasible और x greater than 0 y greater than 0 दिस इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब जो एरिया बनेगा और जो रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों लाई करेगा। सो स्टूडेंट्स नाउ वी ड्रा द फिगर। So students, first line cuts 140 comma 0 and 0 comma 280. So that this is 100, 200, 300, 400. This is 100, 200, 300, 400. So this is first is 140 comma 0. So 140 comma 0 is this. This is 140 comma 0. 140 comma 0. And y axis 0 comma 280. This is 0 comma 280. So this line is passes dash line. This is first line. Line x upon 140 plus y upon 280 is equal to 1. Now students, second line is this. X upon 700 upon 3 is 200 point something, 230 point something. This is 700 upon 3 comma 0, and this line is our y axis students. This passes 0 comma 140. 140 is also here. 140 is also here students. ये ऐसे पास हो रही है स्टूडेंट्स, सेम पॉइंट से जा रही है स्टूडेंट्स। तो अब ओरिजिन टेस्ट इसके भी ऊपर की तरफ आ रहा है, इस लाइन के ऊपर की तरफ और इसके भी ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ। इसको सबसे बाहर का हिस्सा वही हमारे पास बाउंड्री रीजन होगा। दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। एक ही हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो दिस इज द बाउंड्री रीजन स्टूडेंट्स, सबसे आउटसाइड वाला। These are the bounded region students. So only 2 points are there. So there is unbounded region which is common region which satisfies all conditions. जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो ये हमारे पास जो अनबाउंडेड रीजन, सेटेड रीजन, यही अनबाउंडेड रीजन हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, बाहर वाला हिस्सा ये हमारे पास तो कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। सो देयर इज ओनली 2 कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए स्टूडेंट्स? एक आ गया 0,280, दैट इज पॉइंट P 0,280 एंड पॉइंट Q 140,0. So these are the only corner points. So students, इन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। So students, now so this is the corner point, and this is the z is equal to 6x plus 5. First function, this is first function. Now corner point, so corner point students कितना हो गया? P is 0,280 and Q is 140,0. Now put here students, z x equal to 0, y equal to 280, so z equal to 6 into 0 plus 5 into 280, which gives z is equal to 1400. Now students, here you can put z is equal to
x equal to 140 here, so 6 into 140 plus 5 into 0, so z is equal to 840. This is minimum. So minimum cost of fertilizers is minimum z equal to 840 at point 140 comma at point 140 comma 0. So हमारे पास वो स्टूडेंट्स मिनिमम कॉस्ट हो गया हमारे पास, वो हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका जो ये इंटरसेक्शन भी यहाँ पर फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये इंटरसेक्शन सॉरी, अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन भी हो सकता है इसका इंटरसेक्शन पहले ही हो रहा होगा, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। सो ओनली 2 कॉर्नर पॉइंट्स नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x अपॉन फर्स्ट लाइन इज x अपॉन 140 plus y upon 280 is equal to 1, and second line is students, second line is x upon 700 upon 3 plus y upon 140 is equal to 1. So यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, then we get this is x upon 350 upon 3 plus y upon 1400 upon 3 plus यहाँ पर y upon 280 is equal to 1/2. Now students को subtract कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर subtract करेंगे, this will cancel out. So यहाँ पर आ गया x minus 1 upon 40 minus 1 upon 40. This is equal to 1 minus 1/2, which is 1/2 students. So x is equal to 1400 as a very students. So this is 10 minus 1, which is 1/2. So 9. So x is equal to 1400 upon 2 into 9. Now students, I clear this because there are some mistakes in there, because I take 700 upon 3 comma 0 at y axis, but this on x axis, and 0 comma this is 0 comma 140. This is 0 comma 140. तो इसके ऊपर this is the corner region. So their corner points are P, Q, and one more corner point. This is intersection. So corner points are P, Q, and R. That is P is 0 comma 280, Q is 700 upon 3 comma 0, and R is 100 upon 100 comma 80 students. So यहाँ पर अब कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट। सो स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हो जाएगा Q 700 upon 3 comma 0, एंड एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास R आ जाएगा, जो कि दोनों लाइनों को इंटरसेक्शन जब करेंगे तो एक कॉर्नर पॉइंट ये बढ़ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट और आएगा इस पे। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 100 comma 80. Now put here students, this is 1400. So z is equal to, we'll put 700 upon 3 here, so 6 into 700 upon 3 plus 0, that is 1400 again, and when put 180, so z is equal to 600 plus 80, 85, 400. This is because 8 5s are 40, 400 is equal to 1000. This is minimum. So यहाँ पर minimum cost के लिए क्या है, 100 comma 40. So minimum cost at 100 comma 80 is z is equal to 1000. So हमारे पास ये minimum cost आ रही है 1000 rupees. So this is the minimum cost. So for minimum cost
farmer should take 100 kg of fertilizer F1 and 80 kg of fertilizer F2. So students, these type of problems are here we call diet problem. So diet problem में students हम लोगों को अधिक से अधिक चीजें को लगा करके और कम कास्ट में हमको उसको कॉस्ट कम दिखाना होता है, ऐसा हम लोगों को करना होता है. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज.